Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. And also, let me know in the comment section how's your study going. Okay, so first of all, guys, I really want to thank you all because on my channel I have completed 100 subscribers because of you all. Thank you so much, guys. Really, thank you. And I hope you guys will always support me like this. And now the target is 200 subscribers, so let's do it, guys. And you know what, guys, your one subscription gives me a lot of inspiration. So guys, please, if you didn't subscribe my channel yet, please do subscribe. And yeah, when I'm editing this video I have crossed like 100 subscriber, and I have the screenshot when I have completed 100 subscriber, so I will show the picture like somewhere in the screen. So yeah. And you know, guys, I'm super duper happy because I have completed 100 subscriber because of you all. But I know 100 subscriber, crossing 100 subscriber is not a big deal, but for me it's really a big deal. I don't think only for me. Whenever a beginner starts their journey, like YouTube journey, and crossing 100 subscriber, it's a big deal, isn't it, guys? That's why crossing 100 subscriber is like heaven for me. And again, thank you all really much. Because of you all I have completed 100 subscriber, and I hope you will help me to cross like 200 subscribers soon. So yeah, guys, subscribe. Okay, guys, I have like completed some questions from NCERT. Now I am like doing some question from R.D. Sharma, and I'm doing the chapter 3, linear equation in two variables. I'm doing elimination method, like practicing some question of elimination method. Yeah. And yeah, one of you guys has suggested me to like solve some question from R.D. Sharma. So थैंक यू रियली मच कि आपने मुझे ये सजेस्ट किया. बट मैं करती हूँ कभी कभी, मैं R.D. शर्मा से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट नॉट ऑलवेज. जब मुझे कोई टॉपिक हार्ड लगता है तब मैं उसके क्वेश्चन R.D. शर्मा के बुक से ढूंढ कर निकाल कर मैं उसे सॉल्व करती हूँ. या And yeah, I will also suggest you guys to use some reference books, and as soon I will be uploading a video like how many and what reference book I use. And I use reference book because it helps me to clear my doubts, and also मुझे बहुत सारे question भी मिलते हैं solve करने को. So yeah, you guys can also try, and it will definitely help you, I know that. So yeah, guys, in this video I'm gonna share the notes of science chemistry chapter 1, chemical equation and reaction, because one of my subscriber has asked me to request me to upload the notes. So yeah, I'm gonna show you. So yeah, stay tuned. So okay, guys, here the notes, here I'm sharing the notes of chapter 1 chemistry, and yeah, I'm gonna show the notes in the video and as well as on the description, so you guys can check it out. Okay, so you can pause the video to see the notes, or you can directly description से भी आपको उसका PDF मिल जाएगा. तो it's upon to you, आप चाहे pause करके देखिए या फिर description से देखिए. Yeah. एंड हेयर आई एम शेयरिंग द नोट्स जो मुझे मेरे टीचर ने दिया है. मैंने भी अपना नोट्स बनाया है, बट दे आर सो बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड दे आर बहुत ज़्यादा है नोट्स, एंड सो मैंने सोचा कि मैं टीचर का ही दे दूँ. और या तो अगर गाइज आपको मेरा भी नोट्स चाहिए तो यू गाइज कैन कमेंट बिलो. Okay, guys, one of my subscriber has asked me to do this question, middle term splitting, how to do middle term splitting. So I think मैं वीडियो में बता देती हूँ तो आप सबको हेल्प हो जाएगा कहीं ना कहीं. So yeah, तो मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाली हूँ. तो क्वेश्चन है, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो इसमें हमें ज़ीरोस फाइंड करने बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. द क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1.
तो हमें जो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़ीरोस फाइंड करने का ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, सो गाइज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी पहले होती थी कंफ्यूज, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग वाला ही चीज़ है बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस करने से सब ईजी हो जाता है। तो मैं भी प्रैक्टिस करती गई तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ ईजी ही है अभी। सो गाइज इसमें क्या करना पड़ता है हमें, सो इसको छोड़ दीजिए। तो हमें ये दोनों लास्ट जो डिजिट होता है उनको इंटू करना है, साइड वर्क में कर सकते हैं। तो 4 × 1 इज़ 4। अभी हमें देखना है कि 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 × 4 एंड 2 × 2, और इसके सिवा तो किसी में नहीं आता है 4। तो हमें ये दो नंबर का हिसाब से हमें इसको प्लस या माइनस कुछ भी करके हमें ये -4 लाना है। गाइस आप साइन का ध्यान अच्छे से रखना है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो हमें ये -4s² लाना है ये 2 × 2 के हिसाब से, क्योंकि अगर हम 4 × ये हमारा यूज़ होगा, हमें कुछ प्लस माइनस करके ये 4 लाना है। तो अगर हम 4 × 1, अगर 4 को हम -1 कर दें तो ये होगा नहीं, क्योंकि 4 - 1 हो जाएगा 3, और अगर हम 4 + 1 करें तो ये हो जाएगा 5, जो नहीं आना है, क्योंकि हमें चाहिए 4। तो हम अगर इसको देखें 2 + 2 अगर हम करें तो ये 4 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो 4s² है इसको एज इट इज़ यहाँ में लिख देना है 4s², और हमें ये चीज़ को लाना है अभी। तो 2 × 2 ये दोनों को प्लस या माइनस करके हमें 4 लाना है। तो अगर हम यहाँ में देखें 2 + 2 करें तो ये 4 तो आ रहा है, बट हम साइन तो प्लस का आ रहा है, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ में देखें कि 2 - 2 करें तो ये हो रहा है 0, तो ये भी नहीं चाहिए। तो अगर हम यहाँ में -2 एंड -2 करें, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, एंड माइनस का साइन एज इट इज़ लग जाएगा। तो हमें यहाँ में मिल रहा है, तो हमें इसको ही पुट कर देना है, विच इज़ -2s, और ये s हर एक में आएगा, एंड दिस इज़ -2s, और ये +1 एज इट इज़ आ जाएगा इधर। सो हमें ये मिल गया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, इससे और इससे कॉमन लेना है एंड इससे भी कॉमन लेना है। तो अगर हम ये वाले टर्म को देखें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें तो 2s कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 2s को ऐसे लिखें, 2s को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ में क्या बच जाएगा, यहाँ में बच जाएगा हमारा 2s, एंड यहाँ में क्या बच जाएगा हमारा माइनस, यहाँ में कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ में हमारा माइनस आएगा। और अगर हम यहाँ में देखें, ये माइनस साइन को भी गाइस भूलिएगा मत, तो अगर हम यहाँ में देखें गाइस, तो यहाँ में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन लेने लायक है नहीं। अगर हम 1 ले लें, क्योंकि 2s × 1 हर एक में 1 मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम 1 ले लें 1, लेकिन हमें यहाँ में प्लस अगर हम कॉमन ले +1, तब यहाँ में भी प्लस आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ में प्लस है नहीं, तो लेकिन हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और प्लस में भी माइनस है, क्योंकि माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें तो इट विल बी -1, एंड यहाँ का माइनस भी ये आ जाएगा कॉमन में, और यहाँ में हमारा बच जाएगा ये 2s, और यहाँ का ये प्लस तो नहीं रहा, क्योंकि ये माइनस एक कॉमन ले लिया तो और एक माइनस बच गया, तो हमारा यहाँ में आएगा माइनस और ये 1 एज इट इज़। तो हमारा आ गया है ये, और हम फिर इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2s - 1, एंड जो ये 2 आया है इसको भी हम 1 मान के ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया। तो अब हम इससे अपना ज़ीरोस फाइंड करेंगे। कैसे, हमें ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हमको पता है कि हमको उससे 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो इसको हमको, सो द ज़ीरोस आर 2s - 1 will be equal to 0, and 2s - 1 will be equal to 0, and 2s will be equals to 1, and s will be equals to 1/2. So ये हमारा आ गया s का वैल्यू। एंड अगर हम नेक्स्ट वाली ये वाले की बात करें, ये भी सेम ही होगा, 2s - 1 equals to 0, which is 2s equals to 1 and s equals to 1/2। तो ये हमारा आ गया, और हमें जो ज़ीरोस निकलता है ये होगा हमारा अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा एंड बीटा। जो हमारा 2 ज़ीरोस आएगा वही हमारा अल्फ़ा एंड बीटा होता है। तो जो फर्स्ट ज़ीरो आएगा वो होता है हमारा अल्फ़ा, एंड जो सेकंड ज़ीरो होता है वो हमारा होता है बीटा। इससे इसमें
रिलेशनशिप में हमें पुट करना है तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। तो उसे भी हमें हमें लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू, सो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज एस स्क्वायर, तो यहाँ में हमारा क्या है 4 एंड बी इज इक्वल टू क्या है -4 एंड सी क्या है इक्वल 1, तो ये हमारा मिल गया। सो फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सो अल्फ़ा हमें क्या मिला था, ये -1/2 एंड बीटा है +1/2 एंड -b, तो बी हमें बी क्या मिला है -4, तो इसका ये माइनस और ये पूरा एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, और ए में ये आ जाएगा 4, तो हमारा ये आ जाता है। और अगर हम अभी यहाँ में देखें प्लस है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर हम 2 का यहाँ में एलसीएम ले लें तो ये 2 का टेबल में इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये भी 1, तो 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4/4 विच इज़ अगर हम इसे काट दें तो ये हो जाएगा 1, एंड इसको भी अगर हमें करें तो 1 + 1 2 एंड बाई 2 विच इज़ 1, एंड ये भी अगर हम 4/4 को अगर काट दे तो हमें मैंने पहले ही कर दिया तो 1, तो ये हमारा आ गया कि 1 इक्वल्स टू 1। तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट वाला हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। तो अभी हम अपना सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करना है विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। सो तो ये मैंने लिख लिया है। अभी हमें देखना है अल्फ़ा और बीटा क्या था। अल्फ़ा और बीटा में यहाँ में हमने लिखा था कि अल्फ़ा और बीटा है 1/2 एंड 1/2, तो हम इसे लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू, हमें सी भी हमने सब कुछ लिख रखा है, इसलिए हमें लिखने का यही फ़ायदा होता है कि हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें ढूंढने का ज़रूरत नहीं होता है। तो सी है 1 एंड ए है 4, हम लिख लेते हैं, तो विच इज़ होगा 1/4। तो अगर हम इंटू करें 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 विल बी 4, एंड यहाँ में 1 इंटू 1, तो ये हमारा इक्वल हो रहा है कि 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये हमें वेरीफाई हो गया, तो ये हो चुका है हैंस वेरीफाइड। तो गाइज यही था ये क्वेश्चन में, सिर्फ बहुत इजी था ये क्वेश्चन। सो गाइज मैं यही बोलूँगी कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है एक चीज़ को, तो तभी वो चीज़ आपके लिए इजी होगा। एंड गाइज मैंने जैसे समझाया उससे आप कोऑपरेट कर लो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप लोग को ऐसा कुछ वीडियो आप लोग को शेयर कर रही हूँ, एंड अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ तो सॉरी, एंड आई एम क्वाइट नर्वस, दैट्स वाई शायद कुछ गड़बड़ हो गया, तो मुझे माफ़ कर देना। Okay guys, I am having ice cream for the pleasure of 100 subscriber on my channel. Hey guys, here I'm just revising the chapter of geography, chapter 1, which is resources and development. Yeah, I have to revise the chapter because revise करना है। Yeah. ओके गाइस, अगर आपको भी मैथ्स में कोई डाउट है जो मैं आपको समझा पाऊँगी, आपको लगता है, तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक इट आउट, एंड यू कैन अगर आपको नोट्स भी चाहिए किसी चैप्टर का तो आप मुझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो या Okay guys, it's literally around 11 and I'm having my dinner right now, so I'll enjoy my dinner. Yeah, then I'll meet you guys. Okay guys, after dinner I'm just completing some of my holiday homework of English because you know guys, मेरा स्कूल खुलने वाला है, and I have मैं पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मैंने अभी तक अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो मुझे अभी जल्दी से कुछ दिनों में ही अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। सो या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इंग्लिश का मैं हॉलीडे होमवर्क कुछ कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे मैं।
Okay guys, that's all for today. Thank you for watching.